Okay, so just a revision. If goods are sold for cash, I am selling goods for cash. I am giving goods and I am receiving cash. Matter is settled here itself. Nothing to be received or paid in future. So no debtor-creditor relationship is arising between buyer and seller. But when goods are sold on credit, I am giving goods. I am the seller. I am giving goods to the buyer, but buyer is not paying me immediately because the goods have been sold on credit. So buyer is not going to pay me immediately. Buyer is going to pay me later in the future. So future mein there is something to be settled between both of us. So between both of us, debtor-creditor relationship arises. And I have explained you last time, buyer is the debtor party, seller is the creditor party. मैं सेलर हूं, मेरे एंगल से सोचो तो मुझे बायर से पैसा लेने का है, लेने का है मतलब वो मेरा डेटर है. एंड उसके एंगल से सोचेंगे तो ही हैज टू पे मी, तो उसके लिए आई एम द क्रेडिटर. अंडरस्टूड टिल हियर? नाउ सपोज आई एम सेलिंग गुड्स टू साहिल ऑन क्रेडिट, उधार में बेच रहा हूं, तो मुझे साहिल से पैसा चाहिए, फ्यूचर में मुझे उससे लेने का है. तो साहिल मेरा कौन है? डेटर है. आई एम द सेलर, साहिल इज द बायर, बायर इज द डेटर. तो साहिल इज द डेटर, आई एम द क्रेडिटर. So I have sold goods to Sahil on credit. I have to receive in future money from Sahil. Correct? Now I told him, will you pay me? Yes. He told me, promise, पक्का तुम्हारी कसम पैसा देगा बाबा. ऐसा साहिल मेरे को बोल रहा है, तुम्हारी कसम पैसा दूंगा. नाउ अल्टीमेटली तो वो ओरली प्रॉमिस कर रहा है. क्या गारंटी वो देगा नहीं देगा बाद में, 2 महीने बाद. सपोज आफ्टर 2 months I have to receive from him 25,000. Now orally he will tell me yes he is going to pay. I want this proof to be in writing. Now this can be done in 2 ways. रास्ता नंबर 1, promissory note. साहिल खुद एक कागज के टुकड़े पर लिख के देगा मुझे कि वो मुझे प्रॉमिस कर रहा है कि वो मुझे पे करेगा. अंडरस्टूड? तो साहिल विल टेक अ पीस ऑफ पेपर, he will write his name, address, date, and to Mr. Zulesh, I promise to pay you a sum of rupees 25,000 after 2 months for value received. ऐसा करके साहिल नीचे साइन करके वो कागज मुझे दे देगा. अंडरस्टूड? साहिल प्रॉमिस कर रहा है मुझे. दिस कागज का टुकड़ा इज कंटेनिंग अ प्रॉमिस टू पे. दिस पीस ऑफ पेपर कंटेन्स अ प्रॉमिस टू पे. हु मेड दिस? मी और साहिल? साहिल. हु साइंड इट? साहिल. साहिल ने बनाया, नीचे साहिल ने साइन किया कि वो मुझे पैसे देगा. करेक्ट? Who will keep this कागज का टुकड़ा? साहिल और मी? Me. I have to keep it. He will sign, giving me a promise in writing that he is going to pay me. He will sign it, he will give it to me. And now I will keep it for 2 months, and after 2 months I will go with this कागज का टुकड़ा and tell him, look, you have signed this, please pay me, and I'll take the money from him. Understood? This piece of paper is called a promissory note. Now you tell me, promissory note was made in our story. The promissory note was made by buyer or seller? कौन बनाया भाई? मैं सेलर था ना, मैंने माल बेचा था उसको, साहिल को, और फिर साहिल मुझे लिख के दे रहा है वो पैसा देगा. अब बोलो, साहिल कौन? हु मेड दिस प्रॉमिसरी नोट? बायर और सेलर? बायर. बायर मींस डेटर या क्रेडिटर? डेटर. इधर इधर देख भाई, इधर देख, इंग्लिश में मैंने लिखा है बायर इज द डेटर, है कि नहीं? So buyer party and a debtor party is making this promissory note. Now there are how many parties involved in the promissory note? 2. Me and Sahil. Who is giving the promise that he will pay? Sahil. So Sahil is the promisor. The person who is making this promissory note and signing this promissory note and who is giving the promise that he is going to pay, he is called promisor. And he is giving promise to whom? To me. So I am the promisee. Is that clear? तो इस promissory note में there are 2 parties involved, promisor, promisee.
The person who makes the promissory note and who signs the promissory note and who gives the promise that he will pay is the promisor. Understood? And the person to whom that promise is given is the promisee. In our story, Sahil is the promisor, I am the promisee. Is that understood? So promissory note contains a promise to pay. There are two parties to a promissory note, promisor and the promisee. The person who makes and signs the promissory note and who gives the promise to pay is the promisor. And the person to whom the promise is made is the promisee. ठीक है? Now, this is one way of getting in writing. There is another way. एक और तरीका है राइटिंग में लेने का. And that is a bill of exchange. Yeah. Someone wants to ask me something, Nandini. Yeah, what? Tell me. Is there any doubt till now? Everyone, anyone, any doubt till now? Okay. Now, if someone has a webcam issue or anything, they were supposed to inform this earlier. And that also to the office in charge, not here in the class. Yeah, there is one question. Ki what if Sahil has given me a promissory note that he will pay me after 2 months 25,000 rupees. But what within those 2 months Sahil becomes insolvent, वो बर्बाद हो गया, वो लूट गया, डूब गया, तो ऐसा किसी का सवाल है? करेक्ट है सवाल, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है. इस चैप्टर में आगे वो भी सब आने वाला है. सो डोंट वरी, जैसे जैसे वक्त आएगा आपको समझा दिया जाएगा. ठीक है? वी विल कम अक्रॉस ऑल दीज थिंग्स एज वेल. Yes, yes, I'm getting everyone's message. Now, one more. Okay, proceed further now. Now, suppose I am selling goods. I am selling goods. To Kuldeep on credit. I am selling goods to Kuldeep on credit. Now I have to receive money from him in the future. What I did was, I took a piece of paper and on that I wrote to Mr. Kuldeep, 2 months after date, pay me, और my order, मुझे देना या मैं जिसको बोलूं, जिसको ऑर्डर दूं उसको देना, 2 महीने बाद, 2 months after date, pay me or my order a sum of rupees 25,000 for value received. ऐसा मैंने लिखा.
I wrote on a piece of paper to Mr. Kuldeep, you pay me after 2 months a sum of 25,000 for value received. ऐसा करके मैंने साइन किया. इस कागज के टुकड़े की कोई वैल्यू नहीं है. This is what has been explained to you last time. This piece of paper is useless and it does not have any value. Okay, this piece of paper is useless and does not have any value. I am writing on a piece of paper, ए कुलदीप तू 2 महीने बाद मुझे 25,000 देना, ठीक है? Useless, it has no value. Understood? It has no value. I sign it, no value. Now Kuldeep has to sign it. So I will have to take this piece of paper to Kuldeep and tell him, look, you are going to pay me. Sign that you are going to pay me. Once he signs, I will take that paper again from him. I'll get his signature on it and then take him. His signature is very important. Now this document is called a bill of exchange. Now bill of exchange में मैंने भी साइन किया, फिर उसके भी पास से साइन लिया. Now bill of exchange is made by whom? Me, the seller, the creditor party. Understood? Now we have done till here. उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया था कि वो मेरे साइन की कोई वैल्यू नहीं है. You have to sign also. Only then you can. Okay. Now last that we did, we have done this in detail over the last 1.5 hour. जो भी मैंने अभी explain किया, we had done it in detail. ठीक है? Now look here. Suppose Alpesh sells goods to Nikesh for 25,000 on 2 months credit. Who is the seller here? Alpesh. And buyer is Nikesh. 2 months credit पे 25,000 का goods was sold by Alpesh to Nikesh. Now, who will draw a bill of exchange? Who will make the bill of exchange? Tell me. Alpesh will make a bill of exchange asking Nikesh to pay him. Alpesh will sign it. Then he will take the bill to Nikesh. Nikesh will have to sign it and then return it to Alpesh. So Alpesh will draw the bill ordering Nikesh to pay the amount. Alpesh will sign the bill and send it to Nikesh. Nikesh will accept it by putting his signature and then return it back to Alpesh. Now this is what a bill of exchange would look like. Alpesh is making the bill. भाई Alpesh ने माल बेचा है and Alpesh has to receive money from Nikesh. Alpesh ने माल बेचा है, Alpesh has to receive money from Nikesh. तो अल्पेश एक कागज का टुकड़ा लिख रहा है, बना रहा है, और अल्पेश उस पे लिख रहा है 2 months after date पे मी और माय ऑर्डर, 2 महीने बाद मुझे या मैं जिसको ऑर्डर दूं उसको पे मी और माय ऑर्डर अ सम ऑफ रुपीज 25,000 फॉर वैल्यू रिसीव. ये किसने लिखा? अल्पेश ने. कि निकेश तू मुझे पैसे देना 2 महीने बाद. अल्पेश ने साइन किया, निकेश को भेज दिया. निकेश ने लिखा एक्सेप्टेड. एक्सेप्टेड मतलब चलेगा, मान लिया, दूंगा, कबूल है. साइन किया निकेश ने, और ये निकेश ने साइन करके अल्पेश को वापस दे दिया. इज दिस अंडरस्टूड? कॉपी दिस. Be quick, copy this.
Copied. Is this document drawn? Big wait. Some have reported they have finished writing. Others, I get some reasonable number of confirmations. I'll proceed. Now, tell me, look at this bill of exchange. How many parties are involved? 1, 2, 3, 4. How many parties are involved here? How many parties are involved here? It seems there are two parties involved, Alpesh and Nikesh. Tell me, who made this? Who made this document? Who made this bill of exchange? Alpesh. Who signed it first? Who signed it first? Alpesh. Acha, is that enough? Or Nikesh should also sign? Nikesh should also sign. If Nikesh does not sign, this कागज का टुकड़ा has no value and it is called a draft. क्या बोलते हैं उसको? Draft. And this कागज का टुकड़ा has no value. Only after Nikesh confirms, yes, he will pay by putting his signature. At that time, it becomes a bill of exchange. Till that time, this कागज का टुकड़ा has no value. Acha, what does the bill of exchange contain? In promissory note, I had told you a promissory note contains a promise to pay. Correct?
What does a bill of exchange contain? A bill of exchange contains, correct, very good, order to pay. अल्पेश ऑर्डर दे रहा है निकेश को कि 2 महीने बाद मुझे पैसे देना, करेक्ट. तो a bill of exchange contains an order to pay, and there are how many parties involved here? Acha, who is making the bill and ordering to pay? अल्पेश और निकेश? अल्पेश. अल्पेश is called drawer. क्या बोलते हैं उसको? Drawer. Now to whom is the order made? निकेश. तो निकेश को बोलेंगे ड्रॉई. अच्छा, पेमेंट किसको मिलने वाला है? करेक्ट, अल्पेश. तो अल्पेश इज द पेई. नाउ लिसन, मुझे ना पलक से पैसे लेने थे. मुझे किससे पैसे लेने थे? पलक से पैसे लेने थे. तो मैंने एक कागज के टुकड़े पे लिखा, टू पलक पे मी 50,000 रुपीज आफ्टर 3 months. 3 महीने बाद तुम मुझे 50,000 देना. मैं बना रहा हूं, मैं ऑर्डर दे रहा हूं पलक को कि पे करना. तो आई एम द ड्रॉवर. किसको ऑर्डर दिया मैंने? पलक को. तो पलक इज द ड्रॉई. और पेमेंट किसको मिलने वाला है? मुझे. तो आई एम द पेई. बट सपोज मुझे पलक से 50,000 लेने का है. लिसन ना केयरफुली, मुझे पलक से 50,000 लेने का है, बट मुझे एहसान को 50,000 देने का है. मुझे पलक से 3 महीने बाद 50,000 लेने का भी है, और मुझे को एहसान को 50,000 देने का भी है. तो मैंने कागज के टुकड़े पे डायरेक्ट ऐसा लिख दिया, टू पलक 3 months आफ्टर डेट पे एहसान. 3 महीने बाद एहसान को दे देना. ऐसा भी बोल सकता हूं कि नहीं? आई कैन राइट दैट वे ऑल्सो ना. अब कितनी पार्टी इन्वॉल्व है यहां? 3. आई एम ऑर्डरिंग पलक टू पे. So I am the drawer. पलक इज द ड्रॉई. पेमेंट किसको मिलने वाला है? एहसान को. तो एहसान इज द पेई. अंडरस्टूड? हाँ, बट अगर मैंने ऐसे लिखा होता कि 2 months आफ्टर डेट पे मी, तो पेमेंट मुझे मिलने वाला है. तो आई एम द ड्रॉवर एंड आई एम ऑल्सो द पेई. But if I write the name of a third party ki pay that person, then that third person becomes the pay. So sometimes drawer himself is the pay, sometimes कोई और होता है जो pay होता है. Is that understood everybody? So there are 3 parties to a bill of exchange: drawer, drawee and pay. ठीक है. The person who makes the bill and who gives the order to pay is the drawer. In the above example, बताओ, in the above example, अल्पेश या निकेश, who is the drawer? अल्पेश is the drawer. फिर ड्रॉई, the person to whom the order is made and who accepts the bill is the drawee. In the above example, Nikesh is the drawee. The person to whom the amount of the bill is payable is the payee. In the above example,
Alpesh orders Nikesh pay me or my order. In this case, Nikesh has to pay Alpesh. So Alpesh is the payee. However, if X orders Y, pay Mr. Z or his order, then payment will be made to Mr. Z, and so Mr. Z is the payee. Understood everyone? अगर X ने Y को ये बोला कि पे Z, Z को पे करो, तो फिर Z will become the payee. X is the drawer, Y is the drawee, and Z will be the payee. Understood? Can't help it. Okay, start copying this from here to here. ओके, जो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता है, बनाता है, और वो दूसरे को ऑर्डर दे रहा है कि तू पे करना, उसको बोलते हैं ड्रॉवर. अंडरस्टूड? द वन हु मेक्स द बिल एंड हु गिव्स द ऑर्डर टू समवन एल्स कि तू पे करना, दैट पर्सन इज द ड्रॉवर. एंड द पर्सन टू whom यू आर मेकिंग दिस ऑर्डर एंड हु एक्सेप्ट्स द बिल कि ठीक है मैं पे करूंगा, ऐसा जो बोल रहा है, दैट पर्सन इज द ड्रॉई. और जिसको पेमेंट मिलने वाला है वो पेई. कभी कभी ड्रॉवर खुद ही पेई होता है, एंड कभी कभी कोई थर्ड पार्टी पेई होता है. इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट इज पेबल टू हु. क्लियर बेटा? ओके, completed. Now let's go back to this example. Who made this bill of exchange? See the screen. Who made this bill of exchange? Alpesh. So Alpesh is drawer or drawee?
ड्रॉई की ड्रॉवर है अल्पेश। अल्पेश बना रहा है और अल्पेश ऑर्डर दे रहा है निकेश को कि पे करना, तो अल्पेश इज द ड्रॉवर। उसने किसको ऑर्डर दिया पे करो? निकेश को, तो निकेश इज द ड्रॉई। अंडरस्टूड? अच्छा, अल्पेश मेड द बिल, ही साइंड इट। इज हिज सिग्नेचर इनफ? इज ड्रॉवर सिग्नेचर इनफ? नो। ड्रॉई सिग्नेचर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। जब ड्रॉई साइन करता है ना, इट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस ऑफ बिल। इट इज सेड दैट ही हैज एक्सेप्टेड द बिल। Before the drawee puts his signature, the bill has no value. It is not called a bill, it is called a draft. It has no legal value. It is only after the drawee accepts the bill by putting his signature that piece of paper has legal value, and then it becomes a bill of exchange. Understood? Acceptance is an important event for a bill of exchange. A bill of exchange has to be accepted by drawee. The drawee accepts the bill by putting his signature. Before acceptance, this document is just a draft, is called a draft, and does not have any legal value. It is only after the drawee accepts the bill by putting his signature that this document becomes a bill of exchange. And it has legal value. Understood? Now wait, stop writing. Hello, stop writing. रुक जा भाई. हाँ बस, करेक्ट रोनित भाई, करेक्ट. Now can we start? Something important to be told, so please listen carefully. भाई ये देख, अल्पेश ने लिखा कि 2 महीने बाद 25,000 देना, और बेचारा निकेश चुपचाप साइन कर रहा है. उसने कोई टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज की साइन करने से पहले? नो. Such acceptance is called unqualified acceptance. बट अगर निकेश भाई ऐसा लिखता, इधर देख ऑन द स्क्रीन,
अगर निकेश भाई ऐसा लिखता, एक्सेप्टेड फॉर 24,000 ओनली, ऐसा करके निकेश साइन करता, हमने ये बिल बना के निकेश को भेजा था कि तू मुझे 25,000 देना, बट निकेश लिख के ऐसा भेजा दिया एक्सेप्टेड फॉर 24,000 ओनली और फिर साइन किया, या एक्सेप्टेड पेएबल आफ्टर 4 मंथ्स, हमने उसको बोला था 2 महीने बाद देना, उसने लिखा एक्सेप्टेड पेएबल आफ्टर 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, ऐसा करके साइन किया, तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज कर रहा है कि नहीं एक्सेप्ट करते वक्त? यस और नो? यस और नो? यस. So that is called qualified acceptance. So there are two types of acceptance. When the drawee accepts the bill without changing any terms and conditions of the bill, it is called unqualified acceptance. But if the drawee makes certain changes in the terms and conditions of the bill while accepting the bill, it will be called qualified acceptance. Clear? Now, from objective point of view, in your paper pattern, this year we are supposed to have 20 marks of objectives out of 80 marks of paper. All these things will be important there. There are two types of acceptances. One, when the drawee accepts the bill without making any changes to the terms and conditions of the bill, the acceptance is said to be unqualified acceptance. या बोथ आर एक्सेप्टेंस, वन इज क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, वन इज अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस. आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है. And when the drawee makes certain changes as regards amount of bill, period of bill, place of payment, etc., while accepting the bill, the acceptance is called qualified acceptance. Finish writing this. हाँ तो लिखते जाओ भाई. And as far as I know, everyone has been clearly instructed कि सिर्फ कैमरा ही नहीं ऑन होना चाहिए, आपका चेहरा कैमरे के सामने होना चाहिए, कहीं और नहीं.
नाउ समवन इज आस्किंग मी कि निकेश ने गलत एड्रेस दिया, तो अगर गलत एड्रेस दिया तो मैंने उसको माल भी गलत एड्रेस पे भेजा हुआ, उसको माल ही नहीं मिला है। Are these things copied? Now, let's talk about the due date. This is copied, right? Now, किसी को डाउट है? Listen. जिसको भी डाउट है सुनो. I had to receive money from Saurabh. I have to receive money from Saurabh. तो मैंने कागज के टुकड़े पे लिखा to Mr. Saurabh, you pay me 5,000 after 1 month. ऐसा मैं उसको ऑर्डर दे रहा हूं कि पे मी आफ्टर 1 मंथ 5,000 रुपीज. मैंने कागज के टुकड़े पे लिखा, साइन किया, फिर सौरभ के पास बोला जाके कि भाई आप भी इस पे साइन करो कि आप मुझे पक्का पैसा दोगे. उसने भी साइन किया, फिर ये कागज का टुकड़ा मैंने रख लिया. हु मेड द बिल? मी और सौरभ? आई मेड इट. हु इज गिविंग द ऑर्डर टू पे? मी और सौरभ? मी. So I am the drawer. I am making the bill and I am giving the order to pay. So I am the drawer. Now to whom have I given the order? Saurabh. And who is accepting? लास्ट में साइन करके कि हाँ ठीक है accepted मैं दूंगा. सौरभ. तो सौरभ कौन हुआ? ड्रॉई. एंड बिल का पैसा किसको मिलने वाला है? मुझे. तो आई एम द पेई. ठीक है. बट सपोज मुझे 1 महीने बाद 5,000 सौरभ से लेना भी है और मुझे 1 महीने बाद अमृत को 5,000 देना भी है. अगेन नॉट अंडरस्टूड. देखो भाई, मैं एक कागज के टुकड़े पे लिख रहा हूं कि टू सौरभ यू पे मी 5,000 आफ्टर 1 मंथ. तो मैंने बनाया बिल. आई एम द वन हु इज मेकिंग द बिल and I am giving him the order to pay. So I am the drawer. And the person to whom I am giving the order and who is accepting the bill is the drawee. So Saurabh is the drawee. And payment मुझे मिलने वाला है उस बिल का, क्योंकि मैंने ऐसा लिखा था कि 1 month after date pay me. तो पेमेंट मुझे मिलने वाला है. तो मैं ड्रॉवर भी हूं और मैं पेई भी हूं. अंडरस्टूड. बट अगर मुझे 1 महीने बाद अमृत को पैसे देने होते तो मैं कागज के टुकड़े पे डायरेक्टली लिखता टू सौरभ 1 month आफ्टर डेट पे अमृत. 1 महीने बाद तुम अमृत को पैसे दे देना.
ऑर्डर अभी भी मैं दे रहा हूं, बिल अभी भी मैं बना रहा हूं, मैं ही ड्रॉवर हूं, सौरभ ड्रॉई है, बट अब पेमेंट किसको मिलने वाला है? अमृत. तो अमृत becomes the payee then. Is that understood everyone now? Yes. And have you understood the acceptance of bill? ड्रॉई को साइन करना जरूरी है. जब तक ड्रॉई कागज के टुकड़े पे साइन नहीं करता, जैसे यहां पर ड्रॉई इज निकेश, जब तक ये साइन निकेश ने नहीं की, जब तक निकेश ने साइन नहीं किया, ये कागज के टुकड़े की कोई वैल्यू नहीं है. इट इज जस्ट अ ड्राफ्ट. निकेश यानी ड्रॉई ने साइन करने के बाद ही ये कागज का टुकड़ा बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाता है, एंड इट हैज लीगल वैल्यू. अंडरस्टूड? एंड देन everybody understood? Okay. And now अल्लाह रुको. फिर मैंने आपको बोला था, अगर निकेश ने चुपचाप एक्सेप्टेड लिख दिया है, यहां पर हमारे एग्जांपल में निकेश ने चुपचाप एक्सेप्टेड लिख कर साइन कर दिया कि नहीं, तो ये क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है कि अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है? अनक्वालिफाइड है. बट अगर मैंने लिख के भेजा था कि 2 महीने बाद 25,000 देना, वो भाई साहब लिखता है एक्सेप्टेड फॉर 24,000 ओनली. मैं एक्सेप्ट करता हूं लेकिन मैं दूंगा सिर्फ 24,000, ऐसा करके निकेश ने साइन किया. या मैंने लिखा था 2 मंथ्स के बाद, उसने लिखा एक्सेप्टेड पेएबल आफ्टर 3 मंथ्स, तो फिर निकेश है ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज करके एक्सेप्ट कर रहा है, देन इट विल बिकम क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस और अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस. Qualified acceptance because the terms and conditions have been changed. Finally understood till here. Now due date. ओए सामने देख ऑन द स्क्रीन. अल्पेश ने ये बिल कब बनाया? 26th of April. बट निकेश ने एक्सेप्ट करके साइन कब किया? 28th April. नाउ द पॉइंट इज 2 मंथ्स कब से गिनने का? हेलो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अल्पेश ने ये बिल बनाया था 26th of April को, और फिर अल्पेश ने मुंबई से ये कुरियर से भेजा उमरगाम गुजरात निकेश के पास. निकेश के पास ये पहुंचा और निकेश ने एक्सेप्ट करके साइन किया 28th April को. द बिल वॉज मेड ऑन 26th April. निकेश एक्सेप्टेड इट ऑन 28th April. तो फिर ये 2 मंथ्स गिनने का कब से? फ्रॉम 26th ऑनवर्ड्स या 28th ऑनवर्ड्स? लोग 26th April इज कॉल्ड द डेट ऑफ बिल. क्या बोलते हैं? डेट ऑफ बिल. एंड 28th April is called date of acceptance. In this example, 26th April is the date of bill and 28th April is the date of acceptance. Now the point is 2 months will be counted from the date of bill or date of acceptance. बोलो बोलो, टेल 2 महीना कहां से गिनेंगे? बोलो ना. The answer is from the date of bill. 26th April से गिनने का. कैसे? क्या लॉ है, कानून है. देख, बनाया किसने था? अल्पेश ने. अल्पेश ने क्या डेट डाली थी? ये तारीख डाली थी. और अल्पेश ने जब बोला कि 2 महीने बाद, तो वो कौन सी तारीख समझ के बोल रहा था?
अंडरस्टूड द पॉइंट। अल्पेश ने बिल बनाया, अल्पेश ने डेट डाली 26 ऑफ अप्रैल, और अल्पेश ने 2 मंथ्स के बाद पे करना बोला, तो अल्पेश तो 26 अप्रैल की बात कर रहा था ना, और इसने चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया है, क्वालिफिकेशन किया ही नहीं है कुछ। निकेश ने ऐसा लिखा, चुपचाप एक्सेप्ट करके साइन कर दिया है कि नहीं? तो मतलब उसको कंडीशंस मंजूर है, तो वो ये 26 तारीख से ही 2 महीना गिना जाएगा। अंडरस्टूड? सो 2 मंथ्स विल बी काउंटेड फ्रॉम व्हेन? द डेट ऑफ बिल। सो 26 अप्रैल से काउंट 2 मंथ्स, 26 अप्रैल से 26 मई, 26 जून, हो गया 2 महीना। आफ्टर 26 मई कम्स 26 अप्रैल से 26 मई, 26 जून, 2 महीना, प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस पीरियड इज गिवन एज पर लॉ। कानून बोलता है 3 दिन ग्रेस पीरियड का भी देने का। समझे आप? कानून बोलता है 3 दिन एक्स्ट्रा देने का, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट ऐसा बोलता है 3 दिन एक्स्ट्रा देने का। अंडरस्टूड? सो 26 जून प्लस 3 days of grace period which government allows, which the law says you have to give 3 days extra. ओके? पहली बात हमने ये पूछी थी कि 2 महीना जो गिनना है वो कहां से गिनना है, डेट ऑफ बिल से विच इज 26 अप्रैल, या नीचे डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से विच इज 28 ऑफ अप्रैल। द आंसर इज 26 अप्रैल, डेट ऑफ बिल। हाँ, अगर ऐसा लिखा होता 2 मंथ्स आफ्टर डेट की जगह, लुक जा अभी कहानी में ट्विस्ट है, अगर ऐसा लिखा होता 2 मंथ्स आफ्टर साइट, आफ्टर डेट की जगह आफ्टर साइट, तो 2 महीना यहां से गिनने का, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। अगर ऐसा लिखा है 2 मंथ्स आफ्टर डेट, तो 2 महीना गिनने का डेट ऑफ बिल से। अगर लिखा है डेट ऑफ 2 मंथ्स आफ्टर साइट, साइट नहीं मालूम, नजर, तो जब ये तुम्हारी नजर के सामने आया निकेश, तब से 2 महीना गिनेंगे। 2 मंथ्स आफ्टर साइट, जब तुमको ये दिखाया गया उस दिन से गिनेंगे। तो निकेश को ये कब दिखाया था हमने? 28 को, और उसने साइन किया था 28 को, तो तब से गिनेंगे दोनों। तो 2 मंथ्स आफ्टर डेट या 2 मंथ्स आफ्टर साइट, डेट साइट, डेट साइट, डेट साइट। अगर 2 मंथ्स आफ्टर डेट लिखा है तो डेट ऑफ बिल से गिनने का, 2 मंथ्स आफ्टर साइट लिखा है तो साइट से, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से गिनने का। ठीक है? बट आप कहीं से भी गिनो, लास्ट में 3 days एक्स्ट्रा देना ही पड़ता है, ग्रेस पीरियड। चाहे बिल 10 दिन का हो, 2 महीने का हो, 5 महीने का हो, 45 days का हो, कितने भी टाइम का बिल हो, लास्ट में 3 days ग्रेस पीरियड देना पड़ता है। ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में लिखा है, और वो कानून पार्लियामेंट में पास हुआ है, देना पड़ेगा, मैं क्या करूं? Yes, it is a law. Understood? So, due date of the bill. In case of a site, okay. In case of a normal bill, सुनो ध्यान से, लिखना बाद में. In case of a normal bill, the period of bill is counted from the date of bill. In case of a site bill, period of bill is counted from the date of acceptance. In either cases, in either of the case, दोनों में से कुछ भी हो, 3 days of grace period is to be allowed.
ठीक है, दोनों में से कोई भी केस होने दो, लास्ट में 3 days इज टू बी काउंटेड. अंडरस्टूड एवरीवन? या नाउ कहानी में ट्विस्ट है, इंटरेस्टिंग ट्विस्ट. एवरीबडी स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग रे अक्का, स्टॉप राइटिंग. अनन्या अक्का स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग रे एंड लिसन. कहानी में मस्त ट्विस्ट है. सपोज बिल बनाया था 23rd May, सॉरी 23rd November, and it is a 2 months bill. तो what will be the due date? 23rd November को 2 महीने का बिल बनाया था, तो 23rd November से 23rd December, 23rd January plus 3 days of grace period. 23rd November को 2 महीने का बिल बनाया था, तो 23rd November से 23rd December, 23rd January plus 3 days of grace period. तो ड्यू डेट क्या आएगी भाई? 26 January. नाउ आप बोलोगे सर 26 January तो पब्लिक हॉलीडे है, रिपब्लिक डे. वो तो छुट्टी है. 26 January रिपब्लिक डे, हॉलीडे, पब्लिक हॉलीडे. तो फिर ड्यू डेट क्या होगी? तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट कानून है, लॉ है, वो बोलता है लॉ क्या बोलता है पहले वो देखो ना. अपना दिमाग नहीं चलाने का जब कानून ले. पब्लिक अपने हिसाब से जो मन में है बिंदास ले फेंको. लॉ सेज if the due date falls on a public holiday, then the preceding day, preceding पहले वाला दिन, which is not a public holiday, is the due date. ऐसा कानून में लिखा है. तो फिर 26 जनवरी का हो जाएगा 25 जनवरी. अंडरस्टूड? तो अगर ड्यू डेट पब्लिक हॉलीडे के दिन है तो द प्रीवियस डे, द प्रीसीडिंग डे विच इज नॉट अ पब्लिक हॉलीडे इज द ड्यू डेट. अब मैंने 3 दिन गिन लिया ना भाई, उसके बाद ही 26 जनवरी आया था भाई. अब भले जो भी मिला वो मिला, कानून है, मैं क्या करूं. अंडरस्टूड? इज दैट वेरी मच क्लियर? अच्छा, अभी कभी कभी है ना उल्टा भी हो जाता है. पहले से डिक्लेयर्ड पब्लिक हॉलीडे नहीं था, अचानक इमरजेंसी हॉलीडे आ गया. ऐसा होता है ना, कभी कभी किसी को अचानक मन होता है तो रात को 8 बजे आ जाते हैं टीवी पर, मित्रों कल बैंक बंद है और आज रात से नोट नहीं चलेगा. तो कल अचानक इमरजेंसी हॉलीडे आ गया भाई. ऐसा हो सकता है कि नहीं भाई? हो तो गया है भाई, ऐसा हो सकता है. इमरजेंसी हॉलीडे आ गया. नाउ द लॉ सेज कि अगर इमरजेंसी हॉलीडे पे आपकी ड्यू डेट आती है तो नेक्स्ट डे इज द ड्यू डेट. पब्लिक हॉलीडे हो तो द प्रीसीडिंग डे इज द ड्यू डेट. इमरजेंसी हॉलीडे हो तो नेक्स्ट डे इज द ड्यू डेट. ये 26 जनवरी इमरजेंसी हॉलीडे नहीं है, पब्लिक हॉलीडे है, तो एक दिन पहले 25 जनवरी. बट अगर इमरजेंसी हॉलीडे है तो नेक्स्ट डे इज द ड्यू डेट. ऐसा कानून बनाते हैं ना ये लोग, क्या बोलने का. What if Nikesh wants
एक्स्ट्रा ड्यू डेज टू पे, अरे वो तो आपस में समझने की बात है रे। ओके भाई साहब, डोंट टेल मी लॉकडाउन हुआ तो, लॉकडाउन इज नॉट एन इमरजेंसी हॉलीडे। बैंक चालू है, पेमेंट हो सकता है, ऑनलाइन घर पे बैठ के भी मोबाइल बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग सब है, समझा कि नहीं? इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर किया है तो द नेक्स्ट डे इज द ड्यू डेट, अंडरस्टूड? बट पब्लिक हॉलीडे है ऑलरेडी, पब्लिक हॉलीडेज आर ऑलरेडी अनाउंस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इटसेल्फ, तो देन द प्रीवियस डे इज द ड्यू डेट। अच्छा हाँ यार, ये सब तो नॉर्मल बिजनेस में भी हो सकता है यार, बिल नहीं बनाया होगा और ऐसे उधारी में माल बेचा होगा और ड्रॉई मर गया तो तुम लोग जो मेरे को पूछ रहे हो वो तो ऑब्वियस है ना यार, उसके लिए बिल बनाया तो प्रॉब्लम होगा, नहीं बनाया तो प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा है। लोग, नेचुरल कैलेमिटीज आर डिफरेंट थिंग्स, इज इट अन डिक्लेयर्ड इमरजेंसी हॉलीडे, दैट वी हैव टू सी, अंडरस्टूड? in case the due date falls on a public holiday, the preceding day which is not a public holiday is the due date. And in case the due date falls on an emergency holiday, the next day is the due date. Now ऑब्जेक्टिव में बहुत बार वो आपको फिल इन द ब्लैंक में देते हैं कि ड्यू बिल वॉज मेड ऑन दिस डेट, द पीरियड ऑफ द बिल इज दिस, व्हाट इज द ड्यू डेट, और फिर नीचे 4 ऑप्शन देते हैं। एंड यू नो व्हाट, ये लोग तुमको कहां फंसाने की कोशिश करते हैं, लिसन, 25 दिसंबर क्रिसमस पब्लिक हॉलीडे, 26 जैन, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, ये 4 दिन पे ही ये लोग फंसाने की कोशिश करते हैं। इस तरह से ये लोग बनाएंगे सेंटेंस की बराबर ड्यू डेट इन 4 में से एक जगह पर पहुंचता होगा, तो वी हैव टू टेक द प्रीवियस डे, रिमेंबर दीज 4 डेट्स। बाकी सब डेट्स है ना फिक्स नहीं होती, दिवाली हर साल अलग अलग दिन पे आती है, ईद हर साल अलग अलग दिन पे आती है, गुड फ्राइडे अलग अलग तारीख पे आता है एवरी ईयर, तो वो अपन को याद नहीं हो सकता कौन से साल कौन से दिन था, बट दीज आर सम हॉलीडेज विच आर फिक्स्ड, 25 December, 26 January, 2 October and 15 August. They will try to mess you with this. ओके अगर ड्रॉई ने ड्यू डेट पे पैसे दे दिए तो वो रिसीट लेगा ना उसका, वो सामने अपना साइन किया हुआ बिल वापस ले लेगा ना और फाड़ के फेंक देगा, so need not worry. Anyways, have you copied all these points now? Oh yes, sorry, continue beta.
या नॉर्मली क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस होता है ना, जब ड्रॉई कुछ चेंजेस करके एक्सेप्ट करता है तो वो पहले ड्रॉवर को इन्फॉर्म कर देगा और आपस में वो लोग फाइनल कर देंगे। ऑब्वियसली है, उनको आपस में धंधा करना है आगे भी। तुम लोग कब से ऐसे ही बस किसी दिमाग में सोच रहे हो, भाग गया तो, एड्रेस चेंज किया तो। अरे भाई धंधा कर रहे हैं। तुम लोग तो धंधा शुरू होने से पहले बंद करवाने के दिमाग लगा के बैठे हो। Understood now? And finish writing. So the next lecture will be very, very important because in the next lecture we will start कुछ थोड़ा सा explanation बाकी है, ठीक है? And उसके बाद we will start learning the journal entries of this chapter. Okay, क्या आंसर करूं बेटा? तेरा क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है मेरे को. Please ask again. देख भाई, एक अच्छा सवाल पूछा है कि सपोज 26 जनवरी को ड्यू डेट आ रहा है, बट 26 जनवरी रिपब्लिक डे है, पब्लिक हॉलीडे, तो एक दिन पहले 25 जनवरी, बट 25 जनवरी भी पब्लिक हॉलीडे हुआ तो मैंने क्या लिखा है मालूम है? द प्रीसीडिंग डे विच इज, क्या लिखा है? नॉट अ पब्लिक हॉलीडे. तो preceding day which is not a public holiday, that will become the due date. तो आपका आंसर ऑलरेडी आप अपने नोटबुक में लिख चुके हो कि 25 जनवरी भी ड्यू डेट पब्लिक हॉलीडे निकला तो फिर क्या हो जाएगा? 24 जनवरी. अंडरस्टूड और नॉट? इसलिए देखो क्लियरली लिखा है. सेम वे यहां पर भी मुझे लिख लेना चाहिए था, द नेक्स्ट डे which is not a holiday. अच्छा हॉलीडे, प्लीज लिसन, तुम्हारे हिसाब से हॉलीडे वो हॉलीडे नहीं जो पब्लिक हॉलीडेज सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है बिफोर द स्टार्ट ऑफ द ईयर, वही गिनते हैं. प्लस संडेज आर पब्लिक हॉलीडेज. भाई लॉकडाउन इज नॉट अ पब्लिक हॉलीडे. I told you lockdown is not a public holiday, bhai. Banks are working. You can still make payment. है ना? चलो देन, बाय बाय, सी यू. अच्छा एक मिनट, अभी भी रुक. कोई तो भी कुछ पूछा. ओके, महाराष्ट्र बंद है, इंडिया बंद है, ऐसा किसी ने डिक्लेयर कर डाला, कोई पॉलिटिकल पार्टी ने, ठीक है ना? दैट डज नॉट मेक इट अ पब्लिक हॉलीडे और एन इमरजेंसी हॉलीडे. अभी पब्लिक अपना अपना दिमाग लगा रहा है. 26 जनवरी को पब्लिक हॉलीडे था तो एक दिन पहले 25 जनवरी को इमरजेंसी हॉलीडे था. कमाल है यार, तुम क्या क्या दिमाग में चालू रहे. तुमको लगता है 12th में महाराष्ट्र बोर्ड इतना घुमाएगा तुमको? वो भी महाराष्ट्र बोर्ड. नहीं, रह के महाराष्ट्र बोर्ड, कुछ ज्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम इस बोर्ड से? नहीं देख, सीए होता वगैरह होता तो ये सब आड़ा टेढ़ा कुछ भी पूछते. वहां पर लॉ है पूरा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सिलेबस में, तो करते रहना वहां पे सब. तुम लोग यहाँ कुछ घूमो मत, इतना ज्यादा टेंशन मत लो. ये सब ऑब्जेक्टिव में सिंपल सिंपल आने वाला है. मेन जर्नल एंट्री है जिसपे पूरा बड़ा क्वेश्चन आएगा. सो दैट्स व्हाई नेक्स्ट लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, चलो देन, बाय बाय, सी यू, टेक केयर.